Hello children, welcome back to the channel. I hope you all are doing well and studying hard for your board exams. Today we are going to start with a new chapter of civics, the Supreme Court. What is judiciary? Judiciary is a system of court which settles legal disputes. Disputes कैसे? Between people, if people have disagreements, and it also is the interpreter of the constitution. And that is why it is called the guardian of the constitution. तो ये तो हो गया judiciary. Supreme Court क्या है? Supreme Court is the apex court. It's the apex court in the judiciary system. Jurisdiction of functions पढ़ेंगे Supreme Court के. पहले judiciary समझ लेते हैं है क्या. So judiciary is a system of court, like I said, and it settles disputes, it settles disagreements, and it's the final interpreter of the constitution. And the decision of the judiciary is binding on all the states and the union of the country. So we have a single integrated judicial system. अब ये क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट और उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इसके क्लासिफिकेशंस हम बाद में भी पढ़ सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कोर्ट भी एक होता है. ओके, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर्स हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट के मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है इट इज बाइंडिंग ऑल ओवर इंडिया. इन दोनों कोर्ट्स पे वो लागू होता है. Whereas High Court के जो decisions होते हैं, it is binding the High Court, that is the state government as well as the district. ठीक है? So that is called an integrated judicial system. इसी को कहते हैं integrated judicial system. तो ये clear होना चाहिए कि what is single integrated system means. Of course, the Supreme Court controls and exercises all the functions over other courts. There is no distinct set of laws for single civil and criminal judicial system, and it operates throughout the country in the same manner. पूरे देश पे एक जैसा कानून लागू होता है और एक ही डिसीजन अप्लाई होता है. So all the cases that comes from the subordinate court मतलब नीचे वाले जो courts हैं उनसे जितने भी cases हाई कोर्ट में आते हैं और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, this is called integrated judicial system. अब आते हैं why do we need a single independent judiciary? क्या जरूरत है सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी की? तो हमारा संविधान कहता है the constitution says that India is federal, and in a federal system the powers are divided between the legislative, the executive and the judiciary, and they're all independent of each other. So that is basically the federal setup. Division of powers between the executive, legislative and judiciary is part of the federal system, and thus an independent judiciary is essential for a federal governance. ये यहाँ mentioned है कि impartial judiciary
and an independent judiciary is essential for the federal government. So in a representative government, the administration of justice assumes special significance in view of rights of people. The independence of judiciary is essential to protect any violation of the rights of people. लोगों के rights violate ना हो, इसलिए judiciary को independent होना बहुत बहुत जरूरी है. And it is also essential to ensure human rights and protecting the democracy of the country. तो ये reason है कि क्यों judiciary इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से. दैट इज मेंशन्ड इन द फेडरल फीचर. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे. अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट बनी थी 28 जनवरी को 1950. 28 जनवरी 1950 को बनी थी. एंड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब बनाया था 1935 में, तो इसको पार्ट रखा था. इट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम. नाउ सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये याद रखने की चीज है, दिल्ली में है. कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन मतलब कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट 2019 के अमेंडमेंट में 33 अदर जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. तो कुल मिला के 33 + 1 = 34. दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ. जब शुरू हुआ था 1950 में तो 8 जजेस से शुरू किया गया था. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए वैसे वैसे जजेस की नियुक्तियां बढ़ाते चले गए. अब आते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेस पे. तो क्वालिफिकेशंस में जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. वो तो मैंडेटरी है. दूसरी चीज है कि इफ यू हैव बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 years तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है. अगर ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो सकता तो आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट के और फॉर 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 years तो वहां 5 साल है. अगर आप जज हैं तो 5 साल है. और अगर आप एडवोकेट हैं तो 10 साल है. दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी. या फिर आप एक ऐसे डिस्टिंग्विश्ड एमिनेंट यूरिस्ट हो कि प्रेसिडेंट आपको उसके बेसिस पे अपॉइंट कर दे एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हैं, कोई भी एक क्राइटेरिया, तो आप जज बनने के लायक हैं. आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है एज द सुप्रीम कोर्ट जज. अब अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब प्रोसीजर क्या है कि व्हेन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है तो वो कंसल्ट करते हैं जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इनके अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंसल्ट किया जाता है. वेयर एज प्रेसिडेंट को अगर जजेस अपॉइंट करने हैं सुप्रीम कोर्ट के तो वो चीफ जस्टिस को कंसल्ट करते हैं. और वो नॉर्मली सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं. तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा. तो ये प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस.
Now, appointment of the acting chief justice. Acting क्या है कि in the absence of the chief justice of India, if the seat is vacant, उस condition में acting chief justice of India appoint हो सकते हैं under article 126. तो chief justice of India अगर temporarily absent है तो उनकी जगह अपॉइंट हो सकते हैं, या फिर ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है उनके एब्सेंस में, एक्चुअल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एब्सेंस में. अब अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस. अब एडॉक जजेस क्या होते हैं? एडॉक जजेस मतलब टेम्परेरी जजेस, जिनकी सीट परमानेंट नहीं होती है, उनको कहते हैं एडॉक जजेस. ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 127, when there is lack of quorum means the number of judges required. तो अभी at present there are 33 plus 1. तो अगर quorum complete नहीं है of the permanent judges, तो उस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए Chief Justice can appoint judges from the High Court as an ad hoc judge. Ad hoc judge means as a temporary judge. Okay. And it can be also done after the consultation with the Chief Justice of High Court. Obviously, आप High Court के judges को लेके आओगे Supreme Court में to fulfill the quorum, तो आपको Chief Justice of High Court से तो consult करना पड़ेगा. So, and of course, the consent of the president is important for appointment of the judges on ad hoc basis. So, this appointment should be qualified. The judge so appointed should be qualified for the appointment of the judges of the Supreme Court. तो वो criteria उनको fulfill करना चाहिए कि वो हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 साल से एडवोकेट रहे हों, 5 साल के लिए जज रहे हों, तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट के जज एडॉक पे अपॉइंट हो सकते हो. टर्म ऑफ ऑफिस. अब टर्म तो एज सच होता नहीं है, इनकी रिटायरमेंट एज होती है, तो ये 65 इयर्स के होंगे तो वो रिटायर होते हैं, तब तक वो ऑफिस में अपने रहते हैं, या फिर वो उस कंडीशन में अपनी सीट छोड़ सकते हैं जब वो रिजाइन कर दें ऑफिस से. वो भी रिजिग्नेशन किसको भेजते हैं? प्रेसिडेंट को भेजते हैं. एंड ही और शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस by the president by the recommendation of the parliament. अब हम ये भी प्रोसेस पढ़ेंगे. Removing of the judge is done through impeachment like the president. तो impeachment process पूरा फॉलो करना होगा पार्लियामेंट को if in order to remove a judge. Okay. अब आते हैं impeachment of a judge. impeachment का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं. impeachment मतलब removal of the जज. सो इम्पीचमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है. ऐसा इसलिए भी है कि जजेस को इजीली हटाया ना जा सके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इंटरफेयर ना करे जुडिशरी में. सो द प्रोसेस इज लिटिल लेंदी. तो इम्पीच किस ग्राउंड पे होंगे जज? इम्पीच होंगे, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होगा विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. आप काबिल नहीं हैं काम करने के. तो इन दो कंडीशंस पे इम्पीचमेंट होता है. और इम्पीचमेंट का जो तरीका है वो एक मोशन पास होगा टू रिमूव, एंड इट इज एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट. और लोकसभा और राज्यसभा के 100 मेंबर्स, लोकसभा के और राज्यसभा के 50 मेंबर्स अगर साइन करके प्रेसिडेंट को देते हैं तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है. अब ये 100 मेंबर्स क्या करेंगे? स्पीकर को अपना आवेदन देंगे, अपनी रिटन पेटिशन देंगे, और स्पीकर या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है. अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एक कमिटी फॉर्म करेंगे. क्या फॉर्म करेंगे? एक कमिटी फॉर्म करेंगे, और उस कमिटी में 3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के.
3 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और वो तीनों जजेस एक स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी के बाद अगर वो पाते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जज गिल्टी है, तो वो उनको गिल्टी लिख के दे देंगे. ही इज प्रूव्ड, द जज इज प्रूव्ड गिल्टी. अब उस कंडीशन में व्हाट विल हैपन, सॉरी, उस कंडीशन में दोनों हाउसेस, दैट इज इफ अ मोशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, और कितनी मेंबरशिप चाहिए, 2/3 मेंबरशिप चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग. 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स नहीं, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. हमने डिफरेंस डिस्कस किया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस. तो फिर जाके वो मोशन प्रेसिडेंट के पास जाता है, इट इज प्रेजेंटेड, एंड देन द इम्पीचमेंट प्रोसेस गेट्स कंप्लीट. आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है. प्रोसेस शुरू हुआ था विथ वी रामास्वामी, बट द प्रोसेस couldn't get completed because उनको ये 2/3 votes नहीं मिले थे. That time Congress didn't vote. So yes, impeachment process सिर्फ एक जज के लिए आज तक हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में शुरू हुआ था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए द इम्पीचमेंट प्रोसेस गॉट कैंसल्ड. ओके, अब आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. Now the Constitution of India has made some provisions to safeguard and ensure the independence of judiciary from the executive and legislature. Federal feature है ये कि the division of powers will be there. There has to be an independent judiciary. तो इस फीचर को ध्यान में रखते हुए अब हम ये देखेंगे कि कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो पहले हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. ऑफ कोर्स इट इज जस्ट डन बाय द प्रेसिडेंट along with the consultation of the Chief Justice of India. Then security of tenure, जो tenure है वो 65 years है, तो उसमें कोई changes कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो मेंशन्ड है. फिर सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज भी इनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, तो पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है कि जब तक वो टेन्योर में है उस बीच में आप उनकी सैलरी बदल दें. फिर कंडक्ट्स ऑफ द जजेस, इट्स टोटली विद देम. बैन प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जजेस को अलाउड नहीं है अपना कुछ सालों तक प्रैक्टिस करने का, तो दैट ऑल्सो सेपरेट्स द judiciary from the executive. It has the power to punish for its contempt. अगर कोर्ट की आपने अवहेलना की और उनके डिसीजंस को नहीं माना और डिसरिगार्ड किया और डिसरिस्पेक्ट किया, तो the court has the power to punish you. फिर freedom to recruit its staff, कोई भी स्टाफ या सर्वेंट आप रिक्रूट, आप भर्ती कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. फिर फ्रीडम टू अनाउंस इट्स डिसीजन एंड डिक्रीज, अपने डिसीजंस वो अनाउंस करने के लिए वो स्वतंत्र है. फुल कंट्रोल ओवर द प्रोसीजर ऑफ वर्क, पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने वर्क को प्रोसीड करें. अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये अधिकार है कि वो दिल्ली से उठाकर सुप्रीम कोर्ट की सीट किसी और शहर में ले जाएं, कलकत्ता, बंबई, कहीं और. तो ये फ्रीडम, फुल कंट्रोल है उनको कि आप अपने वर्क को किसी भी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं. तो अलग अलग पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्विकली. Appointment of the judges, of course it is done by the president after consulting the judges of the Supreme Court and High Court. Okay, thus it reduces the interference of the executive and political consideration. तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट से जजेस, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करना है, प्रेसिडेंट को नहीं, ऐसा नहीं है. अदरवाइज फिर वो हो जाएगा कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री होगा, अगर उसका कोई केस कोर्ट में चल रहा होगा, तो जजेस विल बी इन्फ्लुएंस. तो ये इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए इंडिपेंडेंट जो बॉडी बनाई गई है, तो प्रेसिडेंट और सिर्फ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंट कर सकते हैं बाकी लोअर जजेस को. ओके, हाई कोर्ट और बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर on the ground mentioned in the constitution, that is through the impeachment process. ऐसा नहीं है कि किसी का भी मन हुआ और पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिया, नहीं. देयर इज अ फुल प्रोसीजर, उसके थ्रू ही इनको आप हटा सकते हैं. सैलरी, of course the salary of the judges, they come from the consolidated fund of India, तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते आप. ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में इसमें बदलाव आ सकता है. अदरवाइज द अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर they are charged from the consolidated fund of India, so it is a non-votable by the parliament. Now, conduct of the judge. The Constitution of India provides the conduct of the judge of the Supreme Court is not subject to discussion in the parliament. Parliament में आप discuss नहीं कर सकते उनके conduct को. Or in the state legislature, they are separate organ of the government and should not be consulted in the parliament. Now, ban on practice after retirement. जो retirement के बाद जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, shall not plead or act in any court or before any authority. So जिस टेरिटरी में वो है, किसी भी टेरिटरी में इंडिया के, वो अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ प्राइवेट लॉयर. That is not allowed, at least for some years. That is restricted so that they are not influenced by the legislature or the executive. Power to punish for its contempt. अगर डिसरिस्पेक्ट हुई, कंटेंट मतलब डिसरिस्पेक्ट हुई कोर्ट की, तो द कोर्ट हैज, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश एनी पर्सन और फॉर दैट मैटर एनी अथॉरिटी. फ्रीडम टू रिक्रूटेड स्टाफ, आपको स्वतंत्रता है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द राइट टू रिक्रूट ऑफिसर्स and servants of the Supreme Court without any interference from the executive. Now, freedom to announce its decision and decrees. The judges have to complete freedom to announce their decision and discuss in the court chambers. Full control over its procedure of work. Now, the Supreme Court is free to decide its own procedure of work. The Constitution declares that Delhi is the seat of the Supreme Court, but it also authorizes that the Chief Justice of India can appoint other places also as the seat of Supreme Court if they wish to do so. So that tells you that how the Supreme Court has the full control over its procedure. So that is the jurisdiction and functions of the Supreme Court. That ends the part 1 of the chapter Supreme Court. We will continue the rest in the next part of the video. Thank you, everyone.